गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। आई एम अमन केपी, कंप्यूटर टीचर, क्लास 4। जैसा कि हम आपको विंडोज 7 के बारे में पढ़ा चुके हैं, आज रिवीजन करवा रहे हैं। विंडोज 7 के फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर क्या हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को देखिए। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन that cannot think on its own and requires instructions from us. The most important program of a computer is the operating system. It is a medium through which we can interact with the hardware using software. It controls all the activity of a computer. There are various types of operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. Windows is graphical user interface. We interface between a computer and its user. It has been developed by Microsoft, the world is leading सॉफ्टवेयर कंपनी। बच्चों, फीचर ऑफ विंडोज 7 क्या है? द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम was Windows 995 Science. Then many versions of Windows have been released. The most popular versions of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. तो Windows 7 operating system has become very powerful because of the following features: attractive and easy to use. Windows 7 has a very attractive appearance with colorful themes. The use of graphics make it quite interactive. It works the way we want and makes new things possible. Searching manager. Using Windows 7, we can quickly search any file or folder in our computer. Flexible taskbar. The taskbar of Windows 7 is more flexible and application oriented, unlike the previous versions. We can pin our favorite programs on the taskbar for easy access. The new Aero Pick features allows us to run the open windows transparent and make the desktop the computer visible. To do so, just point and click on the right edge of the taskbar. Windows supports multitasking. Windows 7 can effectively perform more than
one task at a time. For example, we can type letters in MS Word while enjoying music using Windows Media Player. Jump list. This is a new features that takes us straight to the documents, features, song or websites you have recently visited. To open a jump list, right click on a program button on the Windows 7 taskbar. For example, the jump list for Internal Explorer show the recently opened websites. Shading windows. This option is displayed when you right click the taskbar. The cascading windows option arranged all the open window from the top left corner of the screen to the bottom right in layers. तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम बताते हैं इसको हिंदी में, मतलब विंडोज़ 7 के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, विंडोज़ 7 के बारे में बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो विंडोज़ 7 पहले विस्टा था, फिर कैसे विंडोज़ 7 आया, किस लिए आया, क्या क्या यूज़ था इसका। तो विंडोज़ 7 बच्चों, विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ परिवार का नवीनतम प्रचालन तंत्र है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया 2009 को जारी किया गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे अपने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई सुधार किए हैं। मतलब जो फिर से सुन लीजिए, विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ परिवार का नवीनतम प्रचालन तंत्र है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को जारी किया गया नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे अपने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई सुधार किए हैं। तो क्या क्या सुधार किए हैं? विंडोज़ 7 तैयार करने में इतिहास के सबसे बड़े परीक्षण कार्यक्रम का सहारा लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि उसके इतिहास का सबसे सरल और बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है विस्टा। विस्टा की सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये कई उत्पादों को चलाता ही नहीं है। जैसे कई एप्लीकेशन हमारा था जो विस्टा पे नहीं चल पाता था, विस्टा प्रोग्राम पे नहीं चल पाता था। कई प्रोग्राम ऐसे थे जो नहीं चल पाता था, और इसके अलावा ये मेमोरी की खपत भी बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, तो विंडोज़ 7 में इन समस्याओं को दूर किया गया है। तो जो हमारा विंडोज़ 7 है, इन समस्याओं को दूर किया गया है। विंडोज़ विस्टा में बार बार आने वाले सुरक्षा सचेतक, मतलब एंटीवायरस या कुछ भी सुरक्षा सचेतक का मैसेज आना बार बार लोगों के लिए परेशानी थी। मतलब परेशान, जितनी बार आएगा हमेशा क्लोज किया जाएगा और परेशानी बढ़ती थी। नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि सुरक्षा सचेतक एक सीमा से ज़्यादा न आए, मतलब सीमा के अंदर ही रहे, ज़्यादा न आए। विस्टा की अपेक्षा संगणक को खोलने और बंद करने में भी यह कम समय लेता है। विंडोज़ 7 में विंडोज़ विस्टा के कुछ फीचरों को जहां बदल दिया गया है,
वहीं कुछ को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इनमें क्लासिक, स्टार्ट मेनू, विंडोज़ अल्टीमेट, एक्सट्राइज, इंकपाल और विंडोज़ कैलेंडर प्रमुख हैं। विंडोज़ विस्टा से जुड़े 4 एप्लीकेशन विंडोज़ फोटो गैलरी, विंडोज़ मूवी मेकर, विंडोज़ कैलेंडर, विंडोज़ मेल को विंडोज़ 7 में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये अलग पैकेज जिसे विंडोज़ लाइव एसेंशियल कहा जाता है के रूप में उपलब्ध है। विंडोज़ 7 चलाने के लिए उपभोक्ता के पास 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर और 1 GB की मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप अच्छे से अच्छे कोर्स चाहते हैं तो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है। हाई एंड मशीन से DVD द्वारा विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करने में 15 मिनट का समय लगेगा। P4 में ये इंस्टॉलेशन करने में 25 मिनट लगता है, मतलब 25 मिनट लगेगा। विंडोज़ 7 को पेन ड्राइव द्वारा भी इंस्टॉल किया जाता है, मतलब विंडोज़ 7 को पेन ड्राइव में ले लिया और उस ले जाके अपने सिस्टम में लगा के विंडोज़ 7 को इंस्टॉल कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नई खूबियाँ हैं। क्या हैं? विंडो टास्कबार विंडोज़ 7 को ज़्यादा उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने की कोशिश करती है। इससे उपयोगकर्ता सिर्फ प्रोग्राम आइकन पर क्लिक करके सभी खुले विंडो को एक साथ देख सकता है। इसके अलावा जब भी कोई उपयोगकर्ता टास्क बार में प्रोग्राम आइकन पर क्लिक करेगा, वह देख पाएगा कि कितने दस्तावेज खुले हैं। यही नहीं, वह एक दस्तावेज से दूसरे पर आसानी से पहुंचकर सक्रिय कर सकता है। आता है अब जंप लिस्ट। इसकी मदद से उपयोगकर्ता को हाल ही में काम किए गए फाइलों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें वर्ड या एक्सप्लोरर खोले बगैर ही उपयोगकर्ता द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इस पर आमतौर पर कौन कौन सी साइटें खोली जाती हैं। तो बच्चों, हमारा ये जंप लिस्ट था। अब कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी क्या है? कंट्रोल पैनल में कई नई फीचर्स बढ़ाए गए हैं, जिनमें क्लियर टाइप, टेक्स्ट ट्यूनर, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, विजार्ड, रिकवरी, ट्रबल शूटिंग, वर्क स्पेस, सेंटर, क्रीडेंशियल मैनेजर, बायोमेट्रिक डिवाइस, सिस्टम आइटम शामिल हैं। इसमें खोज का काम गति तेज से किया गया है। ब्राउज करना पहले से ही अधिक आसान है। बेहतर नेटवर्क, वाईफाई, मोबाइल, ब्रॉडबैंड, कॉर्पोरेट VPN आदि के मौजूद नेटवर्क को सिर्फ एक क्लिक की सहायता से खोला जा सकता है। डिवाइस के अनुकूल इसकी मदद से कैमरा, प्रिंटर आदि को आसानी से जोड़ा जा सकता है। बच्चों, विंडोज़ 7 बाज़ार में कुछ 6 संस्करण में उपलब्ध होगा, पर ज़्यादातर देशों में खुदरा में इसके होम और प्रीमियम एडिशन ही उपलब्ध होंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 प्रीमियम का परिवार पैक ऑफर का मनोज है, जिसे 3 कंप्यूटरों में इंस्टॉल किया जा सकता है। विंडोज़ 7 के होम बेसिक एडिशन की कीमत $599 रखी गई है, जबकि
इससे उन्नत संस्करण विंडोज़ 7 अल्टीमेट का मूल्य 11,799 रुपये है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना फीचर्स विंडोज़ 7 के, जिसमें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों, हमने विंडोज़ 7 के जंप लिस्ट के बारे में फिर से एक बार बता दें। जंप लिस्ट क्या होता है? इसकी मदद से उपयोगकर्ता को हाल ही में किए गए फाइलों के बारे में, मतलब जो हम लोग उपयोग करते हैं हाल ही में, जैसे कोई टाइप किए हैं, कोई लेटर, कोई बुक टाइप किए और नहीं मिल रहा है, तो जंप लिस्ट की मदद से हम इसमें वर्ड एक्सप्लोरर खोले बगैर ही उपयोगकर्ता द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि आमतौर पर कौन कौन सी साइटें खोली जाती हैं। मतलब बिना किसी सर्च के, एक्सप्लोरर या किसी के, हम डायरेक्ट जंप लिस्ट से पहुंच सकते हैं कि हाल में, मतलब रिसेंट में, जल्दी में कौन कौन सी फ़ाइल खुली है और क्या क्या खुला है, इतनी जानकारी हमको मिल जाती है। ये हमारा जंप लिस्ट था, ठीक है। तो जंप लिस्ट हमने पढ़ा। तो विंडोज़ 7 चलाने के लिए उपभोक्ता के पास 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर और 1 GB मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप अच्छे कलर चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन के अच्छे कलर चाहते हैं, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड रखना ज़रूरी है। ग्राफिक्स कार्ड आता है कंप्यूटर में जो लगता है, ग्राफिक्स कार्ड के लगाते ही हमारे कंप्यूटर में अच्छे कलर और ग्राफिक्स अच्छे आने लगते हैं, वो होता है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक बच्चों। अब जैसा कि हमने बताया, विंडोज़ 7 बता दिया, जंप लिस्ट बता दिया, अब बताते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में कई नई फीचर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें क्लियर टाइप टेक्स्ट, जैसे हम लोग टाइप करेंगे एकदम क्लियर आएगा, ठीक है, क्लियर टाइप टेप, और टेक्स्ट ट्यूनर, डिस्प्ले कलर, कैलिब्रेशन, विजार्ड, रिकवरी, ट्रबल शूटिंग, वर्क स्पेस सेंटर, क्रीडेंशियल मैनेजर, बायोमेट्रिक डिवाइस। 7 में उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता को फोल्डर और कंट्रोल प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक बच्चों। तो विंडोज़ 7 मार्केट में 6 संस्करण में उपलब्ध होता है, पर ज़्यादातर देशों में खुदरा में इसके होम और प्रीमियम एडिशन ही उपलब्ध होंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 प्रीमियम का परिवार पैक ऑफर है, मनोज हैं, जिनके 3 कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब विंडोज़ 7 एक बार हम ले लेंगे तो उसे 3 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब CD या DVD होता है, उसमें लिमिट होता है, जिसको हम 3 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ 7 के होम बेसिक एडिशन की कीमत 5,899 रुपये रखी गई है। मतलब विंडोज़ 7 का कीमत है 5,899 रुपये रखी गई है, जबकि इससे उन्नत संस्करण विंडोज़ 7 अल्टीमेट का मूल्य 11,799 रुपये है, ठीक है, 11,799 रुपये रखी गई है विंडोज़ 7 सॉफ्टवेयर का। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग विंडोज़ 7 के फीचर्स को ध्यान से पढ़िए। मैं उम्मीद है कि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से, और मैंने हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी पढ़ के बताया। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और वीडियो देखिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।